ناظرین، مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے اور یہ آپ کے دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف دے گی۔ کم عمری میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے اور سارا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرے، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آڑو جسم میں خون کی گردش بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پیے، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں، سارا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور مثانے کو تقویت ملتی ہے۔ اگر بال کمزور ہو تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں۔ پالک کھانا دل کے لیے مفید ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، سیدنا نصر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا ذکر عظیم الشان ہو فرمائے گا، ہر اس شخص کو جہنم کے آگ سے نکال دو جس نے اخلاص کے ساتھ کسی ایک روز بھی مجھے یاد کیا ہو یا وہ کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ ناظرین، کوئی پودا مر جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کے جڑوں میں ڈال دے۔ ناظرین، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لے۔ ہری مرچ کے روزانہ استعمال کرنے سے پھٹوں میں نہایت مضبوطی اور طاقت آ جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دے، انشاءاللہ نیند فوری آ جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتری کو توڑتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کھجور کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دل کے پھٹوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر سنبل کے پتے کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کریں، موسم کے مضر اثرات سے حفاظت میں رہو گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی بکری کا دودھ استعمال کر لے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، سیدنا محمد بن ابی عمیرہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنا یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی طاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرے۔ زیتون کے تیل سے پھٹوں کی مالش کرنے سے پھٹیں نہایت مضبوط ہو جائے گی۔ عجوا کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پی لے، نظر تیز ہو جائے گی۔
चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पी लो। सफर करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है। जो लोग ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि ज्यादा मुसीबतें इंसान पर अपने गुनाहों की वजह से ही आती है। नहार मुंह एक गिलास नीम खोल वाला पानी पीने से मोशन कभी नहीं लगेगी। फटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला खत्म हो जाता है। निहार मुंह गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां गायब हो जाती है। अगर आप दिन के दौरान थकावट या नींद महसूस करते हैं तो खजूर आपकी तवानाई बहाल करने के लिए बेहतरीन इलाज है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। चॉकलेट ज्यादा खाने से रंग सानोला हो जाता है। नहार मुंह इमली का शरबत पीने से 2 महीनों में मोटापा खत्म हो जाता है। नाज़रीन, सैयदना नसरत ज़िल्लाहु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो वो उससे ताअत वाले कामों पर लगा देता है। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल वो उसे किस तरह कामों पर लगाता है? फरमाया, मौत से पहले उसे सालिह अमल करने की तौफीक अता फरमा देता है। नाजरीन, जो लोग कद्दू ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पुरसुकून नींद सोते हैं। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पी लो, सुकून महसूस करोगे। दालें ज्यादा इस्तेमाल करने वाला इंसान हमेशा ताकतवर रहता है। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। सरसों का तेल, कद्दू का तेल और खशास का तेल हम वजन लेकर मिक्स करें। बालों में रोजाना मसाज करने से बाल चमकदार हो जाएंगे। दिन में कम से कम 2 मरतबा कीरे खाएं, मोटापा कम हो जाएगा। नाजरीन, सारी जिंदगी अपने दिल को तंदुरुस्त रखना है तो नमक और चकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। मेथी की सब्जी बनाकर खाने से कमर का दर्द दूर हो जाती है। सूती कपड़े पर नमक चढ़ाकर गैर जरूरी बालों पर रगड़ने से बाल खत्म हो जाते हैं। नाजरीन, जलेबी पट्टों के कीचड़ को खत्म कर देती है। हाथ पांव में खूबसूरती पैदा करने के लिए दूध की बलाई में सिरका डालकर लगाए। दही में छोटी इलायची डालकर इस्तेमाल करने से पेट में गैस नहीं बनती। आलू बुखारा दिल के अमराज में फायदेमंद है। सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। उसका हर मामला उसके लिए बायस खैर है और यह चीज सिर्फ मोमिन के लिए खास है। अगर उसे कोई नेमत मैसर आती है तो वो शुक्र करता है और ये इसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। नाजरीन, पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खाए। बुने चनों में मक्खन डालकर खा लिया जाए तो रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। अपने दांत को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुली किया करें। रात को सोने से पहले मसवाक लाजमी किया करें। जिन लोगों की नजर कमजोर हो उनको शलजम की सब्जी जरूर खानी चाहिए। जो लोग खाने के फौरी बाद सो जाते हैं उनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, नहार मौजवा खजूर दूध के साथ खा लेने से दिल के अमराज में आराम मिलेगा। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा लिया जाए तो आवाज ठीक हो जाती है और अगर गला खराब हो तो खुल जाता है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। सैयदना नसरत ज़िल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क दिया जाता है। नाजरीन, जुड़वा बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो रोजाना केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। खाना खाने के फौरी बाद आपको नींद आने लगती है तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की जरूरत है। टेंडेर या चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल जाएगा। खाना खाने के फौरी बाद कोई फल खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। नाखून काटने के बाद उस पर जैतून का तेल मलने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी।
दिमाग मजबूत रहेगा और याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। नाजरीन, केले के छिलके खा लेने से मैदे की तेजाबियत से जान छूट जाती है। रात के वक्त फैट पर लहसुन के रस का लेप करने से बड़ा हुआ फैट कम हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि घी कोलेस्ट्रॉल का सबब नहीं बनता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। घी पूरे बदन को इंतहाई जरूरी चिकनाई फराहम करता है और आंतों के रास्ते को साफ करता है। नाजरीन, बाल लंबे घने करने हैं, जोड़ों के दर्द से बचना है, जोड़ और पट्टे लोहे जैसे मजबूत करने हैं, तो इसके लिए शकरकंदी खाया करें। कभी थकन महसूस नहीं करेंगे। सोने से कबल आलू बुहारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आती। नाश्ते में गेहूं का दलिया खाने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो लोग बड़े गोश्त का इस्तेमाल हरगिज न करें, वरना मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। केला छीलने के बाद उसके छिलके कचरे में फेंकने के बजाय वाश बेसन की नाली और फौरज खाने में डाल दे, इससे लाल बेग नहीं आएगी। हल्दी इंसान की याददाश्त को बेहतर बनाती है। कोशिश करें हल्दी को दूध में डालकर इस्तेमाल किया करें। रोजाना दिन के वक्त पुदीने की चटनी बनाकर खाएं, आपका पेट ठीक रहेगा। रोजाना कीड़ा खाने से लकवा जैसा बीमारी नहीं होती। थकावट को गायब करना चाहते हैं तो गोश्त की जगह ज्यादा सलाद खाना शुरू कर दे, आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सर में जैतून का तेल मसलने से आप जिस्म की सुस्ती और काहली और ढीलेपन को खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों के फाव पर शुगर की वजह से जहम आ जाए या शुगर मुसलसल कम ज्यादा होने लगता हो, वो गंदम की रोटी खाना बंद कर दे, बल्कि जौ के आटे की रोटी बनाकर खाए। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से सारी जिंदगी आपके बाल कमजोर नहीं होंगे। जो लोग ज्यादा मीठे के शौकीन होते हैं उनमें बुढ़ापे के आसार जल्दी जाहिर होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झुलते हो तो बालों को उबले चावलों के पानी से वॉश करो। जो लोग एड़ियों की तकलीफ से परेशान हैं उनको चाहिए कि चुकंदर रोजाना खाएं, उनके फाव के पीछे फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाएगी। नाजरीन, चेहरे पर अगर कीड़े का रस लगा दिया जाए तो चेहरा फूलों की तरह चमक उठेगा। सैयदना महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतालिक शर के असर का सबसे ज्यादा अंदेशा है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, शर के असर से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबल ईमान में यह इजाफा नकल किया है, जिस रोज अल्लाह बंदे को उनके अमाल की जजा देगा तो और रियाकारों को फरमाएगा, उन्हीं की तरफ चले जाओ जिनको तुम दुनिया में अपने अमाल दिखाया करते थे। देखो क्या तुम उनके पास जजा और खैर व बुलाई पाते हो। नाजरीन, जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता हो वो खजूर दूध में पकाकर खा ले, इससे उनके बदन का दर्द खत्म हो जाएगा। टांगों में दर्द का होना पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में पानी कसरत से पिया करें। रात के वक्त बोलकर भी चाय मत पिए, वरना पेशाब का इन्फेक्शन होने का खतरा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तकरीबन 12% लोग अपने ख्वाबों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। कलवंजी के 5 या 6 दाने जुबान पर रखकर उन्हें चूस ले और कुछ देर पानी से निकल जाए। 1 हफ्ते में वजन तेजी से कम हो जाएगा और साथ ही नजर इतनी तेज हो जाएगी कि रात को भी नजर आएगा। जैतून के तेल में ज्वाइन डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। सौंफ और बुने हुए चने सोने से पहले खाने से जिंदगी में कभी जिस्मानी या दिमागी कमजोरी नहीं होगी। पुरानी से पुरानी खारिश क्यों न हो, देसी ज्वाइन का तेल मुतासरा हिस्से पर लगाने से खारिश इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है, जबकि बुराई करने के बाद ही लिखी जाती है। क्या आप जानते हैं कि बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है और खुराक के बगैर 1 साल तक जिंदा रह सकता है। नाजरीन, अफ्रीका के बाज लोग केले को खुश्क करते हैं, फिर उसका आटा बना लेते हैं और पेट के मरोड़ और हाजमे की खराबी के लिए 1 चम्मच केले का आटा आधा गिलास दूध के हमरा लेते हैं। इससे उनको फौरी आराम आ जाता है। नारियल को दूध में शामिल करके पीने से कोई बीमारी नहीं होगी। निहार में उबला हुआ आलू खाने से
بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں رونے بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ وقت پر کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت اللہ کا ورد کیا کریں۔ ہر کام آسان ہو جائے گا اور اہل و عیال محفوظ رہے گا۔